بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، گلگت بلتستان کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ رہا اور یہی چیز آزاد کشمیر میں بھی ہوتی رہی، اور وہ یہ ہے کہ جس کی بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، یہاں کے لوگ مجبوراً اسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے امیدواروں کو کامیاب کرواتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کے وسائل بہت کم ہیں اور حالات بہت مشکل ہیں، اور ان کا سارا انحصار وفاق سے ملنے والی امداد کے اوپر ہے۔ تو یہ کبھی بھی وفاق کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس کی بھی وفاق میں حکومت ہے یہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور انہیں وفاق کچھ نہ کچھ دے دے جس سے ان کا کام چل جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ سے یہاں کے لوگ یہ فیصلہ کرتے آئے ہیں کہ ووٹ ڈالیں گے وفاق کے نمائندوں کو۔ لیکن اس مرتبہ کافی چیزیں تبدیل ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو پورے پاکستان میں کمپین کی، پورے پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئی لوگوں کی سوچ میں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں نے ایک بیانیہ اپنایا۔ اس کے بعد گلگت بلتستان اور کشمیر کے اندر بھی بہت حد تک ریزنمنٹ ہو رہی ہے، بہت حد تک مزاحمت ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیونکہ اس وقت حکومت میں ہے، وفاق میں، تو ان کے پاس ایک بڑا چانس تھا کہ وہ آسانی سے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنا لیتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑے فیکٹر کے طور پہ سامنے آئی اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا، یہاں تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر الیکشن سے باہر کرنا پڑا۔ ان کا انتخابی نشان جس کے ساتھ اتحاد ہوا، اس کا انتخابی نشان امیدواروں کو پریشان کرنا، بار بار ووٹر لسٹوں میں تبدیلی کرنا، افسران کا تبادلہ کرنا، وسائل کا بے دریغ استعمال کرنا، ڈرانا دھمکانا، صوبہ بدریاں کرنا، لوگوں کو گرفتار کرنا، حراست میں رکھنا، پریشان کرنا، چھاپے مارنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک دفعہ پھر کی ہیں۔ انتخابی نشان بار بار تبدیل بھی کیے ہیں۔ یہ سارا کچھ یہ بتا رہا ہے کہ اب گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں رجحان تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ وفاق کی محتاجی کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی ایسی حکومتیں بنانا چاہتے ہیں جو ان کے حقوق ان تک پہنچائیں۔ اب میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا سلوشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں خاص طور پہ، کشمیر میں آپ اس کو کریں یا نہ کریں، کیونکہ کشمیر ایک آزاد ٹیریٹری ہے، کشمیر ایک آزاد ملک ہے، اور آزاد کشمیر ہم اس کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کا آئینی نقطہ نظر سے پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن آئینی نقطہ نظر سے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی یہ بات کہہ بھی چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بات ایک دھمکی کے انداز میں کہی تھی کہ کشمیری پاکستان کے آئینی شہری نہیں ہیں، اگر وہ احتجاج کرنے آئیں گے تو یہ پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا اور دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے۔ لیکن آ جائیں واپس اپنی بات پہ، میرے خیال میں گلگت بلتستان کا الیکشن کم سے کم پاکستان کے بالکل ساتھ ہی ہونا چاہیے، اسے صوبے کا سٹیٹس دینا چاہیے، وہاں سے قومی اسمبلی کے پھر ممبرز بھی بننے چاہیے، اور گلگت بلتستان کا اگر وہ آپ نہیں کر سکتے، مکمل طور پہ اسے پاکستان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، ایک متنازع ٹیریٹری کے طور پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، تو بھی آپ کو کم سے کم یہ کرنا ہوگا کہ اس کا الیکشن پاکستان کے ساتھ ہی ہو جائے، تاکہ وہاں کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ وفاق کی طرف دیکھتے رہیں کہ جس کی حکومت وہاں پہ بنے گی یا جو بھی وہاں پہ مسلط کیا جائے گا ہمیں بھی اپنے اوپر اسی کو بٹھانا ہے۔ تو یہ چیز مستقبل میں ہونی چاہیے۔ اب الیکشن ہے کل کے دن میں، آج رات کو آپ ویلاگ سن رہے ہیں، کل کے دن میں گلگت بلتستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، اور ان کے فیصلے کے بعد پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے اپنی روش تبدیل کرنی ہے یا تبدیل نہیں کرنی۔ اب آ جائیں ذرا کشمیر کی جانب ناظرین۔ آزاد کشمیر میں کئی مقامات پر احتجاج شروع ہو گیا ہے، گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ گرفتاریوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کے ترجمان جو آئی جی کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور یہ بتایا کہ 72 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں پہ آزاد کشمیر میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ شرپسند ہیں، کلعدم تنظیم سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے تعلقات جو ہے وہ غیر ملکی افراد سے بھی ملتے ہیں۔ جب غیر ملکی افراد کہتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ آپ کا دماغ جاتا ہے کہ شاید انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، کشمیری بہت بڑی تعداد میں، ان کے ساتھ ان کے روابط رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ اگر انڈیا ہوتا تو شاید وہ یہ کہہ دیتے، لیکن وہ تاثر یہی دیتے ہیں، آپ کو پتا پولیس بھی پروپیگنڈا میں لگ جاتی ہے۔ وہاں پہ جو آئی جی لگایا گیا وہ کیپٹن لیاقت کو لگایا گیا تھا۔ کیپٹن لیاقت کی ذہنیت کا اندازہ آپ ان کے اس ایک بیان سے لگا سکتے ہیں۔ یہ ذرا آپ کیپٹن لیاقت صاحب کو سنیے۔ میں ماضی میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح، اور میں بلکہ ان کے بھائی کو بھی جانتا ہوں، ان کی فیملی کو بھی جانتا ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن کیپٹن لیاقت صاحب جو ہیں، یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ماضی میں، وہ سن کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس ذہنیت کے آدمی کو اس وقت آئی جی کشمیر لگایا گیا ہے۔ ایک اس میں کوشچن تھا کہ پاکستان کے حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو میں پتہ نہیں یہ اس کے کنسیکوینس کیا ہوں گے۔ میں کہ 1000 کو بندہ مار دے ٹھیک ہو جائے،
इंटरव्यू में बैठा हुआ चेयरमैन एफपीएससी के सामने यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है, कप्तान कह रहा है कि 1000 बंदा मार दे। क्या बात। कहते हैं पता कैसे लगेगा कि 1000 मारना? मैं कहा एजेंसियों को सारी डिटेल है, कौन कितना गंदा है कौन कितना चंगा है, ये डिसीजन करना। हाँ मुझे कहते हैं आपको वजीर आजम बना दे तो आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं 1000 बंदा मारांगा। क्या बात है। मैं कहते हैं आर यू इन योर सेंसेस मैन? ये हंस के बता रहे हैं एक इंटरव्यू में इस वक्त जो आईजी हैं कश्मीर के कि 1000 आदमी मार दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक्चुअली दबाव डालने की बात कर रहे हैं और मावराए अदालत जो कत्ल किए जाते हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं हंसते हुए एंजॉय करते हुए। अब इस ज़हनियत के ऑफिसर को कश्मीर में लगाया गया है जो 1000 आदमी मारना चाहता है। हालात को ठीक करने का उसके पास सबसे बेहतरीन हल जो उसने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था वो यही है कि 1000 आदमी मार दिया जाए तो हालात ठीक हो सकते हैं, चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। बहरहाल ये अब रियासत की मर्जी है कि वो किस तरह के लोगों को मुसल्लत करती है अवाम के ऊपर। और इसमें एक और अहम चीज है कि एक स्टेटमेंट आया उमर नजीर कश्मीरी की जानिब से। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, दर्स से करा रहे थे और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया अपने लोगों के लिए, क्योंकि कल इन्हें गोली लगी, इन्हें रावलाकोट की है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे अपने साथियों के साथ, इन्हें घेर कर दोनों तरफ से गोली चलाई गई। और सरकार का यह कहना है कि इन कश्मीरी नौजवानों ने गोली चलाई, जबकि इन कश्मीरी नौजवानों का कहना है कि हम पुरअमन थे, हमारे ऊपर गोली चलाई गई, दोनों तरफ से चलाई गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं और एक इनके साथी शहीद हो गए हैं। जो शहीद हुए हैं इनके साथी, उनका नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सरदार शाहजेब हबीब, और वो रेंजर्स की फायरिंग से ये दावा किया गया कि शहीद हुए हैं। बहरहाल इन्होंने जो कहा वो ये कि दोनों तरफ से घिराव करके हम पर सीधे फायर किए गए, हमारे साथी एक शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए जितनी हो सकता है वो आवाज उठाएं, और जितने साथी हमारे आजाद कश्मीर में हैं वो सारे पुरअमन रहें। हमने पुरअमन जद्दोजहद करनी है, हमारे मुतालबात पर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये जो कुर्बानियां हम दे रहे हैं ये इस जद्दोजहद में शामिल हैं। आईएसआई के ब्रिगेडियर और आईजी के हुक्म पर निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं। हमारी जद्दोजहद पुरअमन है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमात और गिरफ्तारियां होनी चाहिए जिन्होंने ये हुक्म दिया निहत्ते लोगों पर गोली चलाने का, और गिरफ्तारियों से आजाद कश्मीर के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अपने जज्बे से और इत्तेफाक से आप जीतेंगे। इंतजार ना करें किसी चीज का, लॉकडाउन के लिए उसका आगाज करें, हर चीज टाइमिंग के मुताबिक होनी चाहिए, कोई हथियार नहीं उठाएगा, तिब्बी इमदाद भी नहीं मिल रही। ये कमोबेश ये उनका स्टेटमेंट है, मैंने वो स्टेटमेंट सुना था, चंद पॉइंट मैंने लिख दिए थे। तो ये उमर नजीर कश्मीरी साहब का एक स्टेटमेंट आया। फिर एक जो बयान है वो आया है शौकत नवाज मीर साहब की जानिब से, जो एक अहम रहनुमा है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के। वो ये कहते हैं कि आजाद कश्मीर पुंछ में उन्होंने सूरत बताई कि बहुत ज्यादा कशीदा हो गई है मौजूदा हुकूमत की वजह से, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेट सर्विसेज और तमाम सहूलियात हम कश्मीरियों से छीन ली गई हैं। मोबाइल और इंटरनेट बंदिश की वजह से सिर्फ ये ऑडियो पैगाम एक मैं जारी कर रहा हूं, और ये पैगाम आप सबसे गुजारिश है कि हर तरफ फैला दें। सरदार शाहजेब हबीब कश्मीरी जो हैं, इन्हें रेंजर्स की फायरिंग से ये शहीद हो गए हैं। शहीद के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। मजालिम की वजह से हम अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जद्दोजहद पुरअमन और बुनियादी हकूक के लिए है, और हम पे गोली चलाई गई है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके मुताबिक बुनियादी अपने हकूक के लिए हम अपना हक इस्तेमाल करते हुए, ये हमारा बुनियादी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सके अपने बुनियादी हकूक के लिए। तो हम पे गोली चलाई गई, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है, और ये हमारे हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये जनाब शौकत नवाज मीर साहब का स्टेटमेंट है। तो कश्मीर की सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। छापे गिरफ्तारियां जारी हैं। एक जगह पे वीडियो आई, वहां पे कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो आवाम बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गई और उन्होंने अपने लोगों को छुड़वा लिया। ये है नाज़रीन कश्मीर की सूरत हाल जो बिगड़ती चली जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है और कल उसके नताइज आना शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पे अवाम के साथ क्या किया गया। तो जमहूरियत तो नाज़रीन पाकिस्तान में आखिरी सांसें ले रही है, और जो पाकिस्तान में मुसल्लत रजीम है वो पाकिस्तानियों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। ये पाकिस्तान के वफाकी इदारे शुमारियात की जो कल की रिपोर्ट है वो जरा आप देख लीजिए। अच्छा, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के वफाकी इदारा शुमारियात की अपनी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी और ने बना दी। और देखें, जब पाकिस्तान का अपना सरकारी इदारा रिपोर्ट बनाएगा तो वो कम से कम ये तो कोशिश करेगा कि हुकूमत को कोई फेस सेविंग मिल जाए। फेस सेविंग के बावजूद जो उन्होंने आदाद शुमार जमा करवाए, वो आदाद शुमार क्या बताते हैं कि एक साल में, पिछले बजट से लेकर इस बजट तक, इस एक साल में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब के रिजीम ने पाकिस्तानियों के ऊपर कितना बोझ डाला।
सिर्फ चंद चीजों का मैं जिक्र करूंगा। ये वफाकी इदारा शुमारियात का डाटा है। वो कहते हैं जी आटे की कीमत में 60% इजाफा हो गया, यानी जितने का आटा था उसमें 60% इजाफा हो गया। आज आटा 3,000 रुपए के आसपास मिलता है, 20 किलो का थैला, बाद 2,250 का, 3,000 का, ये उसका रेट चल रहा है। कई जगह पे ज्यादा, कई जगह पे कम। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में ये 1,100 रुपए का था और कहा जाता था बहुत महंगा, बहुत महंगा। आज दुगने से भी ज्यादा, 3 गुना के करीब कीमत पहुंचने वाली। बहरहाल ये आटे की कीमत 60% एक साल में मजीद इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो भी 60% है। एलपीजी की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो 57% से ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो 50% के करीब है, उससे ज्यादा है। डीजल भी 50% के करीब इजाफा किया गया। ये नाजरीन ने कीमतों में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में चीजों में, और बहुत सारी और चीजें हैं जिनमें इजाफा हो गया, और ये वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। अब नाजरीन पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी में मजीद इजाफा कर दिया, पेट्रोल की लेवी को फिर से बढ़ा दिया गया पाकिस्तान में। और जो अब लेवी बढ़ाई गई है इसके बाद जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत के ऊपर सिर्फ लेवी वसूल की जा रही है वो 116 रुपए फी लीटर से जायद, 116 रुपए फी लीटर से जायद सिर्फ लेवी वसूल की जा रही है। इसके साथ आप बाकी सारे टैक्सेस शामिल कर दें तो यहां पे पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत जो इमरान खान साहब के दौर में थी, ये सिर्फ उतने टैक्सेस ले रहे हैं या उसके आसपास सिर्फ टैक्सेस ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। जिन्होंने 70 रुपए लीटर का पेट्रोल पाकिस्तानियों को बेचना था वो उसी पेट्रोल के ऊपर कम से कम 116 रुपए से जायद लेवी वसूल कर रहे हैं। अमीर आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है आने वाले बजट में, यानी जो बड़े लोगों पे टैक्सेस में कमी हो रही है, जो एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े उनसे 1% एडवांस टैक्स लिया जाता था। मेरे ख्याल में वो भी एक ज्यादती थी, लेकिन वो टैक्स खत्म किया जा रहा है। गरीब के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, अमीर के ऊपर टैक्सेस खत्म किए जा रहे हैं। तो ये अलीट क्लास के लोगों की हुकूमत है, अलीट लोगों के लिए है। अमीरों की हुकूमत, अमीरों के लिए हुकूमत, अमीरों के मफादात और गरीब आदमी को पीसने का सिलसिला जारी है। ये हुकूमत गरीब आदमी की बिल्कुल नहीं है। यानी आप अंदाजा करें कि पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा कर दिया है। और जब ये कमी करते हैं ना पेट्रोल की कीमत में, तो बड़ी बड़ी खबरें लगवाते हैं, 2-3 रुपए 4 रुपए कमी करते हैं, 5 रुपए कमी करते हैं। लेकिन जब इजाफा करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो 50 रुपए 100 रुपए का इजाफा करते हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आने के बावजूद पाकिस्तानियों को वो रिलीफ नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए था। दुनिया के किसी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस तरह नहीं बढ़ाई गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाली जंग को भी इस्तेमाल किया अपने मफाद के लिए, और उन्होंने पेट्रोल के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के टैक्सेस लगाकर अवाम की जेबें काटी और बहाना बनाया कि जनाब पड़ोस में एक जंग हो रही है। तो ये तो इंडिया के लिए भी हो रही है, बांग्लादेश के लिए भी हो रही है, श्रीलंका के लिए भी हो रही है, अफगानिस्तान के लिए भी हो रही है।